Hello students, in previous video we have started the 7th unit of maths, that is money, and we are doing some fun with coins and currencies, and we have discussed few parts of this question. So let us do the remaining parts. I have told you to do, so if you have already done then check it. So what we have to do is we have to write the amounts. हम क्या लिख रहे थे? amounts लिख रहे थे. amount means जो total इनको add करके आता है, that is amount. जो coins और notes हमें दिए हुए हैं उसको हमें plus करके amount लिखना है. total कितना money ये है, right? So here are the notes of 500 rupees, 100 rupees, 50 rupees, 10 rupees and 5 rupee coin is there also. So we have to add them and write the amount in the box. Let us start adding 500 plus 100. 500 plus 100 is 600, right? 600 plus 50 is 650 and 650 में हम 10 ऐड करेंगे. So 50 में 10 ऐड किया 60, so 660 and 5 rupee coin is also there. तो 660 में 5 और ऐड करें 665. सो व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि अमाउंट लिखने से पहले आपने क्या लिखना है? रुपीज. हमारी जो करेंसी है उसका जो साइन है दैट इज र लिख के बीच में से कट करेंगे, दैट इज अवर करेंसी. रुपीज का जो साइन है. सो हाउ मच अमाउंट इज देयर? दिस इज 665 रुपीज. 665 rupees. Similarly, in the next one, so here the notes and the coins are given. 500 rupees note, 50 rupees note and 20 rupees note. And there are lots of coins also. 1 rupee coins are there, 2 rupee coin and 5 rupee coin are there. So let us find the amount. 500 plus 50. 550. 550 में 20 प्लस करेंगे, 50 में 60, 70, तो 570. सो ये हमारे 3 नोट्स को हमने ऐड कर दिया. सम इज 570. नाउ स्टार्ट एडिंग द कॉइन्स. यहां से स्टार्ट करता हूं मैं. 570, 5 प्लस किया 575, 576, 577, 78, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584. So what is the sum, or you can say amount? That is rupees 584. Right? You can check the answers if you have already done. Now the last one. Here there is no coin, only the notes are given, so we have to add them carefully. First of all, that is up to you कि कैसे आप ऐड करते हैं. अगर इजी वे में हम ऐड करें तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो बिग नोट्स हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं. तो 100 रुपीज़ के जितने भी नोट्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं. 100 plus 100 plus 100, there are 3 notes of 100. So 100 plus 100 is 200 plus 100 is 300 rupees. Now we will add the small notes. So 300, 310, 320, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. So what is the amount? Rupees 390. So in this way you can find out the amount, right? And then we have also discussed the question number 2. Here the different notes are given. 100 rupees के 3 notes, 50 rupees के 4, 20 rupees के 3, 10 rupees के 3, 5 rupees के 3 coins, 2 rupees के 3 coins and 1 rupee के 2 notes. ये आपके पास इतने ये मनी है एंड यू हैव टू पे टू शॉपकीपर. जो ये आइटम्स है इनको परचेज करने के लिए आपको शॉपकीपर को
पे करना है। एंड कौन कौन से नोट्स आप देंगे सो दैट द टोटल अमाउंट जो है आपका पूरा हो जाए, दैट वी हैव टू सी. So first one is already done that we have discussed. Now let us move to the second one, that is Walkman. So we have to purchase the Walkman now and we have to pay how much amount? कितने का है ये Walkman? 215 rupees का. So हमें अब 215 rupees पे करने हैं शॉपकीपर को. So how can we pay? We have 100 rupees notes. So 200 है, so we will pay 100 rupees. 200 पहले हम 200 बनाते हैं. 100 प्लस 100 कितना हो गया? 200 रुपीज, राइट. एंड देन अब हमें कितना बनाना है? 15 रुपीज और चाहिए. 15 रुपीज और के लिए हम क्या कर सकते हैं? अब 20 रुपीज तो नहीं लेंगे हम नोट, हम क्या लेंगे? 10 रुपीज का नोट ले लेते हैं. ₹10 का नोट ले लेते हैं. अभी भी कितना बचा है? 210 हो गए. 215 बनाना है तो 5 रुपीज और चाहिए हमें. सो ₹5 का हम कॉइन देंगे. सो ये हमारे पूरे टोटल हो गया. 100 प्लस 100 200, 210 प्लस 5 215, राइट. नाउ नेक्स्ट इज योर लंच बॉक्स. एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लंच बॉक्स? ₹71. लंच बॉक्स कितने का है? 71 रुपीज का. नाउ वी हैव टू पे 71 रुपीज टू a shopkeeper. So how can we pay? हमारे पास 71 रुपीज. सो 100 रुपीज का नोट तो नहीं देंगे हम. एग्जैक्टली हमें 71 रुपीज बनाने. तो सबसे पहले हम 50 रुपीज का नोट ले सकते हैं, राइट. सो ₹50 का नोट ले लेते हैं एक हम. अभी भी हमें 71 नहीं हुए और हम क्या है, अभी हमारे पास 3 नोट्स और देने हैं हमने. सो 1 रुपी है तो 1 रुपीज अलग से भी हो गया. सो हम 10 रुपीज के 2 नोट ले लेते हैं. सो ₹10 रुपीज इज ऑलरेडी रिटर्न. 10 कितने हो गए? 50 60 70 एंड 1 रुपी मोर 71. सो अब हमारे पास कितने हो गए? 71 रुपीज. नेक्स्ट टी शर्ट. देयर इज अ टी शर्ट. सो हमें क्या करना है? टी शर्ट लेनी है. इसके लिए हमें कितना पे करना है? What is the cost of t-shirt? That is 182 rupees. Cost of t-shirt is 182 rupees. So how can we pay? हमारे पास 100 रुपीज के 3 नोट्स थे. 2 हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, 1 अभी भी बचा हुआ है. सो वी विल यूज दैट 100 रुपी नोट, 100 रुपी, एंड देन 182 बनाना है हमारे पास. और 50 रुपीज के हमारे पास 4 नोट्स थे, उसमें से अभी तक हमने 1 यूज किया है. सो वी विल यूज दैट 50 रुपीज नोट. सो इट इज 150. स्टिल 82 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 50 60 70 80 30 रुपीज और फिर 2 रुपीज अलग से. सो 150. देन 20 रुपीज का नोट ले लेते हैं हम एक. 3 नोट्स थे, अभी तक हमने 20 रुपीज का नोट यूज नहीं किया है. सो 20 रुपीज, 150 60 70, देन 10 रुपीज और 70 80, 180 हो गए. अभी कभी भी 182 बनाना है तो 2 रुपीज और हम इसमें 2 रुपीज का कॉइन देंगे. सो इट बिकम्स 182 रुपीज. नाउ लास्ट वन इज गेम्स. गेम्स हमारी कितने की है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गेम? 127 रुपीज. 127 रुपीज हमने बनाने हैं. 50 रुपीज के हमारे पास 2 नोट्स यूज हो चुके हैं एंड वी हैव 4 नोट्स ऑफ 50 रुपीज. 2 यूज हो गए, 2 हम और यूज कर सकते हैं. सो 50 प्लस 50 100 रुपीज एंड देन हमें और 20 एंड देन 7 रुपीज बनाने. सो वी हैव यूज ओनली 120 रुपीज नोट. हमारे पास 320 रुपीज के नोट है तो इसमें से भी हम यूज कर सकते हैं. सो दैट वी हैव टू कीप इट इन माइंड कितने हमारे पास नोट्स बचे हैं और कितने कितने रुपीज के. सो व्हाट वी कैन डू इज हमें 127 रुपीज हमें बनाने हैं. कैसे बनाएंगे हम?
50 रुपीज के 2 नोट्स हम ले सकते हैं, क्योंकि 100 रुपीज के 3 नोट्स थे वो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. यू कैन सी हेयर हमारे पास कितने हैं 100 रुपीज के 3 नोट्स. 300 रुपीज नोट्स आर देयर एंड वी हैव ऑलरेडी यूज 3. 1 नोट, 2 नोट एंड 3 नोट्स. 3 नोट्स हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं. सो वी डोंट हैव 100 रुपीज नोट नाउ. अब हमारे पास 50 रुपीज के नोट्स बचे हुए हैं. So that we will use that 50 रुपीज नोट्स. सबसे बड़ा जो हमारे पास है 50 रुपीज है. 100 रुपीज खत्म हो गए हैं. सो रुपीज 50, देन अगेन रुपीज 50. सो यहाँ पर भी हम और 50 रुपीज लेंगे. सो ये हो गए हमारे 50 प्लस 50 100 रुपीज. अभी भी 27 रुपीज और चाहिए. सो हम 7 रुपीज बनाने के लिए 5 रुपीज का कॉइन लेंगे और एक 2 रुपीज का कॉइन ले लेंगे. 2 रुपीज का अभी तक हमने 2 कॉइन्स यूज किए हैं. हमारे पास 1 कॉइन अभी भी बचा हुआ है. यू कैन सी हियर 3 2 रुपीज कॉइन्स आर देयर. एक यहां पर यूज हो गया है ₹2 कॉइन और एक यहां पर हो गया है ₹2 कॉइन. स्टिल 1 2 रुपी कॉइन इज लेफ्ट एंड 5 रुपीज के भी हमारे पास अभी बचे हुए हैं. 3 कॉइन्स थे. 1 कॉइन 2 कॉइन आर यूज्ड. 1 कॉइन इज स्टिल left, so we can use that. and 20 रुपीज के भी हमारे पास नोट्स बचे हुए हैं. बट यहाँ पर हमारे यहाँ पर कहीं पर चेक करना पड़ेगा ये आपको. सो यहाँ पर 20 रुपीज के नोट्स बचे हुए हैं. 120 रुपीज एंड स्टिल 7 रुपीज आर लेफ्ट. सो ₹5 and ₹2. So now it is 100, 50 plus 50, 100 plus 20, 120 plus 5, 125 plus 2 is 127 rupees. ये हमारा 127 rupees हो गए हैं. Now the next question, Rohan has ₹76 in his wallet. उसके wallet में 76 rupees हैं. He bought a cap for ₹38. उसने 38 rupees की कैप खरीद ली. Find the money left with him. So do you remember the keywords of the 4 mathematical operations we have already discussed in previous chapters? जो यहाँ पर क्वेश्चन में लेफ्ट वर्ड आया, लेफ्ट मीन्स बचा हुआ. तो ये लेफ्ट वर्ड किसका कीवर्ड है? डू यू रिमेम्बर? 76 रुपीज उसके वैलेट में है. वैलेट में से 76 रुपीज में से 38 रुपीज की उसने कैप खरीद ली. अब कितना मनी उसके पास बचा हुआ है? बचा हुआ मीन्स लेफ्ट आउट. लेफ्ट आउट मीन्स बचे हुए के लिए हम क्या करते हैं? वी सबट्रैक्ट. हम सबट्रैक्ट करते हैं. सो वी हैव टू फाइंड आउट द लेफ्ट मनी. सो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू सबट्रैक्ट. सो वी विल राइट टोटल मनी इन द वैलेट. टोटल मनी, that is ₹76 and he bought a cost of cap. cap कितने की है? ₹38. don't forget to write the rupees sign because हम करेंसी वो कर रहे हैं. and now we have to find money left. so money left के लिए हम क्या करते हैं? उसके left is the keyword of subtraction. माइनस करेंगे. माइनस कैसे करेंगे आपको पता ही है. 6 is smaller, so we have to borrow करेंगे. it becomes 16 और यहाँ पर क्या बचेगा? 6. so 16 minus 8 is 8 and 6 minus 3 is 3. so 38 rupees is still left in his or still left with him. so in this way you can find out the answer. so this we have I think already done in previous class also. in class 2nd you have done, I hope so. and in next video we will learn something new. Thank you.